السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ اسرائیلی فوج نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ فلسطینیوں پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ OIC فلسطین میں جارحیت رکوانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا OIC ورچوئل اجلاس سے خطاب۔ فلسطین میں بربریت کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اجلاس میں مسجد الاقصی میں اسرائیلی فوج کی درندگی پر غور۔ OIC کے سیکرٹری جنرل کا صہیونی درندوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر فلسطینیوں کو خراج تحسین۔ فلسطین پر انسانی تاریخ کے بدترین مظالم، 6 روز سے جاری بمباری اور حملوں میں 174 افراد شہید ہو گئے۔ شہداء میں 47 بچے اور 22 خواتین بھی شامل۔ 1000 افراد زخمی اور سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ درمی برقرار۔ غزہ پر مزید حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیل کی فلسطین پر بمباری کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں احتجاج۔ لندن میں فلسطین کے حق میں بڑی ریلی۔ کینیڈا میں مونٹریال، ٹورنٹو سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں۔ بنگلہ دیش، اسپین، فرانس، ناروے سمیت یورپ اور کئی ایشیائی ممالک میں مظاہرے۔ امریکہ کے دباؤ پر ملتوی ہونے والا سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ بحیرہ عرب میں سمندری طوفان توقتے نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ سائیکلون سندھ کی حدود کے باہر سے نکلنے لگا۔ کراچی کی ساحلی پٹی کو خطرات کم ہو گئے۔ سندھ میں بھی تیز بارش کا خطرہ ٹلنے لگا۔ کراچی میں گردآلود ہواؤں کے جھکڑ، سورج آگ برسانے لگا۔ درجہ حرارت 42 تک پہنچ گیا۔ بحیرہ عرب میں توقتے طوفان، ٹھٹہ، سجاول اور بدین کے ساحلی علاقوں میں مٹی کا طوفان۔ بدین میں مچھلی کے شکار کے لیے جانے والے ماہی گیر واپس آنے لگے۔ ٹھٹہ میں کالے بادلوں کا راج، ساحلی علاقوں کے لوگوں میں خوف و ہراس۔ ماہی گیروں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ سمندری طوفان توقتے بھارتی ریاست کیرالہ سے ٹکرا گیا۔ طوفان کے باعث علاقے میں شدید بارش اور تیز ہوائیں۔ مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک۔ بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل مکانی۔ سمندری طوفان سے بھارت کی 6 ریاستیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ ملک بھر میں مکمل لاک ڈاؤن کل سے ختم ہو جائے گا۔ مارکیٹیں اور دکانیں بھی کھل جائیں گی۔ رات 8 بجے تک کاروبار کیا جا سکے گا۔ 90% حاضری کے ساتھ دفاتر کو بھی کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ پبلک ٹرانسپورٹ SOPs کے ساتھ بحال۔ ملک میں کرونا وائرس کے مہلک وار جاری۔ لاک ڈاؤن کی بدولت کرونا کی شدت کم ہونے لگی۔ ایک روز میں مزید 76 افراد انتقال کر گئے۔ 2379 نئے کیسز رپورٹ۔ 24 گھنٹوں میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.82% رہی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی جاوید لطیف کے اہل خانہ سے ملاقات۔ مریم اورنگزیب، طلال چودھری، پرویز رشید، خرم دستگیر بھی ملاقات میں موجود۔ مریم نواز کا کہنا تھا، میاں جاوید لطیف ہماری پارٹی کا فخر ہیں، انہیں نواز شریف سے وفا کی سزا دی گئی۔ عالمی بینک کی احساس پروگرام کی سماجی تحفظ کے 4 بہترین منصوبوں میں شمولیت۔ وزیر اعظم عمران خان کی ثانیہ نشتر اور احساس پروگرام کی ٹیم کو مبارکباد۔ ٹویٹ میں لکھا، اہم سنگ میل عبور کرنے پر احساس پروگرام کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پانی کی تقسیم کے وفاقی نظام کو غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ کہا، عید پر سندھ کا پانی روک کر وفاقی حکومت نے شفافیت کی انتہا کر دی۔ پانی کا بحران پیدا کرنے والی حکومت نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی۔ عمران خان سندھ کی زمینوں کو بنجر کرنے کی کوششوں کا سلسلہ بند کریں۔ بزرگ سیاستدان بیگم نسیم ولی خان 4 سدہ میں انتقال کر گئیں۔ شوگر اور عارضہ قلب میں مبتلا تھیں۔ نماز جنازہ شام 6 بجے ولی باغ میں ادا کی گئی۔ اور ویمبلے میں کھیلے گئے FA کپ فائنل میں لیسٹر سٹی نے چیلسی کو 1 گول سے ہرا کر پہلی مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ کھلاڑیوں نے جشن کے دوران فلسطینی پرچم بھی لہرا دیا۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب کی جانب سے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر مسلم ممالک کی سب سے بڑی تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا ورچوئل اجلاس میں مسجد اقصی میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی تشدد اور اسرائیلی پولیس کے مظاہرے کے خلاف طاقت کے استعمال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اسرائیل انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی اور فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ OIC اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ فلسطین کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے منعقدہ OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی ورچوئل اجلاس طلبہ
طلب کر لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اسرائیل انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی اور فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اسرائیلی فورسز نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ غزہ پر مسلسل بمباری کی جا رہی ہے جس کے باعث کئی معصوم بچے شہید ہوئے۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نہتے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور مظلوم فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پاکستان مسئلے کے حل کے لیے 2 ریاستی فارمولے کے عزم کو دہراتا ہے۔ ہنگامی اجلاس طلب کرنے پر OIC کا مشکور ہوں۔ ہم سب فلسطینیوں کی مکمل حمایت اور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ OIC اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے اور عالمی برادری کو بھی چاہیے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف طاقت کا غیر قانونی استعمال رکوانے کے لیے آواز بلند کرے۔ قابض اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ غزہ پر بے رحم اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز کی عمارت تباہ، مسجد سمیت متعدد گھر بھی تباہ کر دیے گئے۔ تازہ حملوں میں 7 بچوں سمیت 10 فلسطینی شہید، شہادتوں کی مجموعی تعداد 140 تک پہنچ گئی۔ خون میں لت پت لاشیں، آہو بگا اور ملبے کے ڈھیر، اسرائیلی بربریت سے فلسطین لہو لہو۔ غزہ پر چھٹے روز بھی اسرائیل نے رحم نہ کیا، شدید بمباری جاری۔ تازہ حملوں میں اسرائیلی طیاروں نے بین الاقوامی میڈیا ہاؤس کی عمارت جلا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اسرائیلی بمباری سے اب تک سینکڑوں مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ قابض فوج نے مسجد کو بھی شہید کر دیا۔ مسلمان مسجد کے ملبے پر آذان دے کر دنیا کو جگاتے رہے۔ باپ نے اپنی بیٹی اور بیوی کو کھو دیا، 9 مولود کو اسپتال میں دیکھ کر چومنے لگا۔ اسرائیلی ٹینک اور زمینی فورسز نے غزہ کی پٹی کا گھیراؤ کر کے مہاجر کیمپ پر بمباری تیز کر دی۔ صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری میں فلسطینی شہداء کی تعداد 140 ہو گئی۔ 31 بچے، 21 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ 950 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کے چپے چپے پر فلسطینیوں کا حق ہے، ایرانی سپریم لیڈر کی فلسطینیوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ کہا فلسطینیوں پر مظالم کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات پوری امت مسلمہ کا فرض ہے۔ انشاءاللہ بیت المقدس سمیت خطے سے اسرائیل کا نام و نشان جلد مٹ جائے گا۔ لازم میدانم که این 2 حادثه‌ای رو که در دنیای اسلام در این چند روز اتفاق افتاد، 2 حادثه خونین، تذکر بدم و تأثر خودم و احساس تأسف و ناراحتی خودم رو از این 2 حادثه بیان کنم. یکی حادثه تلخ و گریه آور افغانستانه و شهادت این نوگلان و قنچگان مظلوم که بدون هیچ گناهی مورد تهاجم قرار گرفتند و پرپر شدند و خانواده هاشون رو داغدار کردند. لعنت خدا بر اون کسانی که جنایت رو تا این حد گسترش میدن و برای خودشون مباح میدونن که این تعداد بزرگ دختر نوجوان رو بیگناه به خاک و خون بکشن. و همچنین حوادث مربوط به مسجد الاقصی و فلسطین و قدس شریف که خباثت صهیونیست ها جلو به چشم مردم جهانه و واقعا وظیفه همه است که موضع بگیرن و محکوم کنند حرکت خبیثانه و جنایتکارانه و وحشیانه و ظالمانه صهیونیست ها رو در قضیه روزهای اخیر. البته خوشبختانه فلسطینی ها بیدارند و عازمند، باید هم دنبال بکنن، جز با زبان قدرت با این جنایتکاران نمیشه حرف زد. بایستی خودشون را قوی کنن و بایستن و مقابله کنن و طرف رو مجبور کنن به اینکه از جنایت کوتاه بیاد و تسلیم حق و انصاف بیاد. فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ سربراہ سلسلہ نقشبندی اویسیہ امیر عبدالقدیر آواد نے عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا آپس کے جھگڑے ہمیں تباہی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ فلسطین میں جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں دکھ تو ہے، لیکن وہ دکھ کیسا جو علاج نہ ڈھونڈے، وہ دکھ کیسا جو عمل پہ نہ آئے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں ایمان عطا فرمائے کہ ہم نہ صرف ان مظالم کا مقابلہ کر سکیں بلکہ غیر مسلم کے تحفظ کا بھی سبب ہو سکیں۔
अपने हिस्से का किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जनूब मशरकी बहर अरब में मौजूद हवा का कम दबाव समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया। कराची, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास और थरपारकर में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं। बहरे अरब में मौजूद डिप्रेशन तूफान में तब्दील। कराची, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास और थरपारकर में तूफानी बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरे अरब में मौजूद डिप्रेशन कराची से 1460 किलोमीटर के फासले पर है, जिसके साथ 70 से 100 किलोमीटर रफ्तार की हवाएं चल रही हैं। हवा का कम दबाव समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया और हवा के कम दबाव के मरकज के गिर्द हुआ। मरकज के गिर्द हवा की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर फी घंटा है। आइंदा 12 से 18 घंटों में शदीद समंदरी तूफान का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा के कम दबाव का यह सिलसिला 18 मई तक भारतीय रियासत गुजरात तक पहुंच जाएगा। तूफान के असरात के सबब ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में तेज आंधी और शदीद बारिशें मुतवक्के हैं और कराची में 17 से 20 मई के दौरान तंदो तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान है। लाड़काना, सखर, हैदराबाद, शिकारपुर, खैरपुर, जामशोरो, शहीद बेनजीराबाद, जैकबाबाद में 18 से 20 मई तक 70 से 90 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से गिरदालूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने की तवक्को है। समंदरी तूफान के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची और बल्दियाती इदारों को बंद नाले फौरी खोलने और शहर से बिलबोर्ड्स हटाने का हुक्म दे दिया। माहीगीरों को भी समंदर में ना जाने की हिदायत कर दी। समंदरी तूफान टॉक आई वजीर आला सिंध मुतहरिक हो गए। मुराद अली शाह की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। महकमा मौसमियात के हुकाम ने बताया कि बहरा अरब के जुनूब में बारिश का निजाम बन रहा है। अगर साइक्लोन भारतीय गुजरात को अबूर करता है तो ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर और सांगड़ के अजला मुतासर होंगे। सांगड़ और दीगर अजला में बारिशें होंगी। साइक्लोन 17 मई से 20 मई को उनके अजला में अपने असरात पैदा करेगा। अगर साइक्लोन कराची के गरबी एरिया को अबूर कर जाता है तो कराची, हब, लसबेला, हैदराबाद और जिला जामशोरो में 18 से 20 मई तक बारिशें होंगी। वजीर आला मुराद अली शाह ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को शहर से बिलबोर्ड हटाने और कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत करते हुए कहा कि इमरजेंसी प्लान बनाकर इक़दाम किए जाएं। कमिश्नर के एनसी और डीएमसी नालों की चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर करें। वजीर आला ने माहीगीरों को भी समंदर में ना जाने की हिदायत और तमाम मुतालिका डीसीज को भी अपने दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने मुल्क भर से लॉकडाउन के खात्मे का ऐलान कर दिया। एनसीओसी ने आज से बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट बहाल करने की इजाज़त दे दी। तमाम दुकानें और मार्केटें 17 मई से SOPs के साथ खोलने की मशरूत इजाज़त भी दे दी। रेलवे 70% मुसाफिरों के साथ अपने ऑपरेशन को बरकरार रखेगा। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का अहम इजलास हुआ, जिसमें कोरोना SOPs पर अमल दरामद को तसल्ली बख्श करार दिया गया। इजलास में बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट 17 के बजाय 16 मई से बहाल करने का फैसला किया गया। रेलवे को 70% मुसाफिरों की इजाजत होगी। इजलास में तमाम दुकानें और मार्केटें 17 मई से शाम 8 बजे तक SOPs के साथ खोलने की मशरूत इजाजत भी दी गई है, जबकि तमाम निजी और सरकारी दफातर को 17 मई से 50% हाजिरी के साथ काम की इजाजत दे दी गई। इजलास में SOPs पर अमल जारी रखने की हिदायत के साथ साथ आवाम से खुद को वैक्सीन लगवाने पर जोर दिया गया। सूरत हाल का जायजा इजलास 19 मई को होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का यू टर्न, कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम अभी तक ECL में शामिल नहीं हुआ। समरी मंजूरी के लिए कैबिनेट डिवीजन में है, अभी तक वापस नहीं आए। शेख रशीद का मजीद कहना था कि शरीफ फैमिली के 5 अफराद मफरूर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने 2 रोज पहले लाल हवेली के सामने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से मुतालिक अपने बयान की खुद ही तरदीद कर दी। कहा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम अभी तक ECL में शामिल नहीं हुआ। इस हवाले से समरी कैबिनेट डिवीजन में है, जो सोमवार या मंगल को वापस आ सकती है। समरी पर फैसला वजारत कानून और वजारत दाखिला आर्टिकल 25 के तहत करेगी। शेख रशीद का कहना था कि शरीफ फैमिली के 5 अफराद मफरूर हैं। शहबाज शरीफ सीधा लंदन नहीं जा रहे थे, उन्होंने कतर में 15 दिन करंतना करना था। इनका कहना था कि हमें शहबाज शरीफ की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली। शेख रशीद ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और पुलिस ने लॉकडाउन में अपने फराइज खुश असलूबी से अंजाम दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोरोना की शरह कम होना शुरू हो चुकी है, जबकि भारत में आदमखोर कोरोना ने तबाही मचा रखी है। अवामी नेशनल पार्टी के रहबर तहरीक खान अब्दुल वली खान की अहलिया बेगम नसीम वली खान इंतकाल कर गयीं। ANP की साबिक सूबाई सदर बेगम नसीम वली खान के अहले खानदान ने इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि बेगम नसीम वली खान शुगर और आर्ज़े कल्ब में मुब्तला थी। तर्जुमान ANP की जानिब से जारी अलामिये में बताया गया है कि बेगम नसीम वली खान की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर वली बाग 4 सद्दा में अदा की गई।
सिंध के तमाम तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। सूबाई महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि कोरोना के पेश नज़र 17 मई से 23 मई तक तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मुअत्तल किया गया है। तालीमी इदारों के सरबराह तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को बुला सकेंगे, जबकि सूबे भर में ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। कोरोना वबा के बायस मजीद 76 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि फाल केसेस में कमी वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2379 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिक़ा मरीजों की तादाद 8,73,130 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 30,402 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई टेस्ट्स की तादाद 12,44,404 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2,379 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिक़ा मरीजों की तादाद 8,77,130 हो गई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,98,078, पंजाब में 3,25,662, खैबर पख्तूनख्वा में 1,26,787, इस्लामाबाद में 79,123, बलूचिस्तान में 23,831, आजाद कश्मीर में 18,231 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,418 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 68,819 है, जबकि 4,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 76 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब इस वबा से जान भाग होने वाले अफराद की तादाद मजमूई तौर पर 19,543 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 5,288 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 7,88,768 हो गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हममंसब वांग ज़ी से टेलीफोनिक राब्ते में फ़लस्तीन की सूरत हाल, अक़वान अमन अमल समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल किया है। राब्ते में शाह महमूद कुरैशी ने चीन के खलाई मिशन के मरीख पर कामयाब लैंडिंग पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान में कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए चीन की मुसलसल मुआवनत पर इजहार तशक्कुर भी किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन के मामले पर आला सतह रवाबित की तफसीलात से आगाह किया। उनका कहना था कि इसराइली जहरियत से मशरिक़े वस्ता के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। मामले पर आलमी बरादरी को किरदार अदा करने की जरूरत है। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। दहशतगर्द रियासत इसराइल के मुजालिम का सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। दुनिया वर्ल्ड फैमिली डे मना रही है और फ़लस्तीन में एक ही घर के 10 अफराद वहशियाना बमबारी की जद में आ गए। फ़िज़ाई और ज़मीनी फ़ौज के हमलों से 37 बच्चे और 22 ख़वातीन समेत 140 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने जंगी जराइम छुपाने के लिए गज़ा की दूसरी बुलंद इमारत अल जला टावर पर मिसाइल दाग दिए, जिससे इमारत मलबे का ढेर बन गई। हमास के जवाबी हमले भी जारी हैं। तेल अवीव, अस्कलान समेत रॉकेट हमलों से कोई शहर महफूज नहीं रहा। इसराइल से नकल मकानी में इजाफा हो गया। यूरोप और अमरीका की फ़्लाइट्स में नशिस्तें कम पड़ गईं। ना तो गासिब और दहशतगर्द इसराइल के मुजालिम रुक रहे और ना मजलूम फलस्तीनियों के हौसले पस्त हो रहे। इसराइल के गजा और मगरबी किनारे में जंगी जराइम जारी। फिजाई हमलों और जमीनी फौज की बमबारी से शहीद होने वालों की तादाद 140 तक जा पहुंची, जिनमें 37 मासूम बच्चे, 22 खवातीन शामिल। दुनिया फैमिली डे मना रही है और हफ्ते को इसराइल के हमले एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने फलस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम को दुनिया के सामने लाने की पादाश में मीडिया हाउसेस पर हमले शुरू कर दिए। गजा की दूसरी बुलंद इमारत अल जिला टावर पर 4 मिसाइल लगने से 10 मिनट में मलबे का ढेर बन गया। इमारत में अल जजीरा, AP, मकामी रेडियो और कई आलमी न्यूज एजेंसियों के दफातर के अलावा रिहायशी फ्लैट भी थे। इमारत जमीन बोस होते हुए कम जंगी वसाइल मगर बुलंद हौसलों के साथ हमास ने भी इसराइलियों के होश उड़ा दिए। तेल अवीव, अस्कलान समेत रॉकेट हमलों से इसराइल का कोई शहर महफूज नहीं रहा। भारी माली अखराजात से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। महंगा तरीन दिफाई निजाम हमास के सस्ते रॉकेटों के सामने नाकाम हो गया। यहूदियों पर लर्जा तारी है और इसराइल से नकल मकानी में इजाफा हो गया। यूरोप और अमेरिका की फ्लाइटों में नशिस्तें कम पड़ गईं। अल क़स्साम ब्रिगेड के फौजी तर्जुमान अबू बैदा ने इस इसराइली हमले की रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा, गजा में सिविलियन टावर पर बमबारी के बाद तेल अवीव और मरकज के बाशिंदों को एक टांग पर खड़ा होना चाहिए और हमारे जवाब का इंतजार करना होगा। गजा पर हमले के जवाब में अल क़स्साम ब्रिगेड और हमास ने इसराइली इलाकों में 150 से ज़ायद रॉकेट दागे। अब तक 12 इसराइली हलाक और 34 जख्मी हो चुके हैं।
فلسطین میں اسرائیلی بربریت جاری ہے تو دوسری جانب اسلام دشمن ممالک مکروہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگے۔ فرانس اور ڈنمارک میں فلسطین کی حمایت میں نکلنے والوں پر پابندی عائد کر دی۔ پیرس میں مظاہرین پر بدترین تشدد کیا گیا۔ لبنانی سرحد پر اسرائیلی فوجی نے حزب اللہ کے ایک کارکن کو شہید کر دیا۔ اسرائیل کے فلسطینیوں پر ظلم و ستم انسانیت دوست سراپا احتجاج بن گئے، لیکن اسلام دشمن ممالک کی روایتی ہٹ دھرمی برقرار۔ فرانس میں اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرنے پر عوام کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، احتجاج پر پابندی بھی عائد کر دی۔ ڈنمارک میں بھی فلسطین کی حمایت میں نکلنے والوں کو ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ لبنان کی سرحد پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے حزب اللہ کا کارکن شہید ہو گیا۔ عراق میں بھی فلسطینیوں کے حق میں بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ امریکہ، برطانیہ سمیت یورپ کے بیشتر ممالک میں شدید احتجاج کیا گیا۔ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آوازیں بلند کی گئیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں بھی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارتی حکومت کورونا کے وار روکنے میں تاحال بری طرح ناکام ہو گئی۔ مہلک وائرس سے مزید 3880 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ کورونا وائرس نے انڈیا میں ڈیرہ جما لیا۔ وائرس سے شہریوں میں خوف کا عالم۔ خونی وائرس سے مزید 3880 افراد ہلاک ہو گئے۔ آکسیجن اور ادویات کی کمی کے باعث اسپتال مریضوں کو داخلہ دینے کے لیے تیار نہیں، جس کے باعث سینکڑوں مریض سڑکوں، ایمبولینس اور ذاتی گاڑیوں میں سڑکوں پر پڑے ہیں۔ بھارت میں مزید 3,26,000 سے زائد مریض رپورٹ۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 2,66,000 سے تجاوز کر گئی۔ سنگین صورتحال پر مودی سرکار شدید تنقید کی زد میں ہے۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں BTV بزنس میں۔ مالی سال 2020-21 میں پاکستانی معیشت کی شرح نمو اسٹیٹ بینک کے تخمینوں سے کم 2% رہنے کی توقع ہے۔ اسٹیٹ بینک نے معاشی شرح نمو 3% رہنے کا تخمینہ ظاہر کیا تھا۔ آئندہ ہفتے شرح نمو کو اس وقت جھٹکا لگنے کی توقع ہے۔ اسٹیٹ بینک بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں مارچ کے مقابلے میں اپریل کے مہینے میں کمی رپورٹ کرے گا۔ صف اول کی 5 ملکی بینکوں میں سے ایک ترسیلات زر کے شعبے کے سربراہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رواں ماہ مئی میں تارکین وطن کی ترسیلات زر میں مزید گراوٹ کی توقع ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپریل میں ترسیلات زر مارچ کے مقابلے میں 100 سے 200 ملین کی کمی سے 2.5 تا 2.6 ارب ڈالر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپریل کے آغاز میں ترسیلات زر کا حجم اچھا تھا، مگر پھر مہینے کے آخری ایام میں نامعلوم وجہ کی بنا پر ترسیلات کم ہوتی چلی گئیں۔ بینک کا عملہ بھی اپریل کے اختتام پر ترسیلات زر میں کمی پر حیران تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ ترسیلات زر کے حتمی اعداد و شمار آئندہ ہفتے اسٹیٹ بینک جاری کرے گا، لیکن یقینی طور پر یہ اعداد و شمار مارچ سے کم ہوں گے۔ بینکاری کے مطابق مئی کے مہینے میں ترسیلات زر میں مزید کمی آئی ہے اور گراوٹ کا یہ سلسلہ مہینے کے باقی ایام میں بھی جاری رہنے کی توقع ہے۔ واضح رہے کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدا میں 9 ماہ مارچ تا جولائی کے دوران گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں ترسیلات زر میں 26% اضافی ریکارڈ دیکھا گیا ہے۔ 9 ماہ کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے 21.5 ارب ڈالر وطن واپس بھیجے ہیں۔ ترسیلات زر ہی ملکی معیشت کا واحد مثبت پہلو ہے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے گزشتہ ایک سال کے دوران دنیا میں بھوک کے شکار لوگوں کی تعداد 15 کروڑ 50 لاکھ ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیو کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے گزشتہ ایک سال کے دوران دنیا میں بھوک کے شکار لوگوں کی تعداد 2 کروڑ سے بڑھ کر 15 کروڑ 50 لاکھ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھوک کے شکار لوگوں کی فوری امداد کی ضرورت ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے پاس کووڈ-19 سے پیدا ہونے والے بحران سے نمٹنے کی صلاحیتیں کم ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو ان ممالک کے لیے گرانٹس، رعایتی اور غیر رعایتی قرضے اور فائنینسنگ بڑھانا ہوگی۔ کم آمدنی والے ممالک کو کورونا کے خلاف لڑنے اور اس کے اثرات سے نکلنے کے لیے اگلے 5 سال 450 ارب ڈالر خرچ کرنا ہوں گے۔ ان میں 200 ارب ڈالر کورونا کے اثرات سے نکلنے اور 250 ارب ڈالر کم
आमदनी से निकलकर हायर इनकम की सतह पर वापस आने के लिए खर्च करना होंगे। पोलिटिकल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इजहार किया है कि क्रिस्टलिना जॉर्जियो का कहना है कि G20 की जानिब से कर्जों की वापसी की मुअत्तली से कम आमदनी वाले ममालिक को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए फौरी तौर पर दरकार माली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। IMF ने भी CCRT के जरिए अपने गरीब तरीन मेंबर ममालिक को कर्जों में रिलीफ फराहम किया है। IMF दरमियानी आमदनी वाले ममालिक के कर्जों की रीशेड्यूलिंग के जरिए इमदाद जारी रखेगा। IMF ने अपने मेंबर ममालिक के फाइनेंसिंग के लिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR के लिए मुख्तस रकम बढ़ाकर $650 अरब कर दी है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। दुनिया का पहला 3 आंखों वाला बछड़ा बर्तानिया के इलाके वेल्स के फार्म में देखा गया, जिसने कई लोगों को गहरी सोच में मुब्तला कर दिया है। वेल्स के एक फार्म में जानवरों की डॉक्टर मार्लिन ह्यूज मुआयना की गर्ज से गईं तो उन्होंने 3 आंखों वाला बछड़ा देखा, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड की। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस बछड़े की उम्र 4 माह है, जो कि सेहतमंद है, जबकि ताहाल ये वाजे नहीं हो सका कि आया इस तीसरी इजाफी आंख से कुछ दिखाई देता है या नहीं। मार्लिन ह्यूज के मुताबिक बहैसियत डॉक्टर इस किस्म का जानवर उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है। उनका कहना था कि बाज़ाहिर इसकी ये आंख बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन इसकी आंख में से किसी किस्म का मवाद खारिज हो रहा है, इसलिए ये जानना नामुमकिन है कि दरअसल इसकी आंख के अंदर हो क्या रहा है। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। कोरोना वायरस के टेस्ट के बाद इसकी तशखीस में कम से कम 24 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन माहिरीन ने इसके लिए निहायत आसान तरीका दरियाफ्त कर लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक नीदरलैंड के साइंसदानों ने शहद की मक्खियों के जरिए कोविड-19 की तशखीस में कामयाबी हासिल की है। इस मकसद के लिए साइंसदानों ने शहद की मक्खियों को तरबियत फराहम की, जिसके सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है, और नमूनों में उन्होंने सेकंडों में बीमारी की तशखीस की। मक्खियों की तरबियत के लिए नीदरलैंड्स की वैगनिगन यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इन्हें कोविड-19 से मुतासिर नमूने दिखाने के बाद मीठा पानी बतौर इनाम दिया, जबकि आम नमूनों पर कोई इनाम नहीं दिया गया। इन मक्खियों को इस वक्त इनाम दिया जाता जब वो कोई मुतासरा नमूना पेश करती। साइंसदानों ने बताया कि हमने आम शहद की मक्खियां हासिल की थी और मुस्बत नमूनों के साथ इन्हें मीठा पानी दिया गया। उन्होंने बताया कि तजुर्बे की बुनियाद थी कि मक्खियां वायरस की तशखीस पर इनाम हासिल कर सकेंगी। अमूमन कोविड-19 के नतीजे के हुसूल में कई घंटे या दिन लगते हैं, मगर शहद की मक्खियों का रद्द अमल बर्क रफ्तार होता है। ये तरीका कार सस्ता भी है और साइंसदानों के मुताबिक इन ममालिक के लिए कारआमद है जिनको टेस्टों की कमी का सामना है। इस तरह का तरीकेकार 1990 की दिहाई में धमाका खेज और जहरीले मवाद को ढूंढने के लिए भी कामयाबी से अपनाया गया। याद रहे, शहद की मक्खियों को ज़हीन ख्याल किया जाता है और इससे कबल भी शहद की मक्खियां मुख्तलिफ तजुर्बात में जहानत के मुजाहरे पेश कर चुकी हैं। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। मारूफ मिर्जा निगार फारूक कैसर का नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दिया गया। नमाज जनाजा में शोबिस और सियासत के अलावा बड़ी तादाद में चाहने वालों ने शिरकत की। फन के मैदान में फारूक कैसर की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मारूफ मिर्जा निगार, कॉलम नोइस और मशहूर ड्रामा सीरियल अंकल सरगम के खालिक फारूक कैसर की नमाज जनाजा इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शोबिस और सियासत के अलावा मुख्तलिफ मकातिब के ढेरों चाहने वालों ने शिरकत की। नमाज जनाजा में शरीक होने वाली फारूक कैसर के साथ अफसरदगी के आलम में उनकी खिदमात और इखलाक को खूबसूरत अल्फाज में याद करते नजर आए। फारूक कैसर 31 अक्टूबर 1945 को उन्होंने पाकिस्तान समेत रोमानिया और अमेरिका से तालीम हासिल की। फारूक कैसर एक फनकार, मुसन्निफ, सहाफी, हिदायतकार और अजीम इंसान थे। उन्होंने अंकल सरगम का अफसानवी किरदार अदा किया, जो बच्चों में बहुत मकबूल हुआ। तारीख फारूक कैसर को अंकल सरगम के नाम से याद रखेगी। शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा गना अली जल्द ही रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने जा रही हैं। अदाकारा ने नारंगी रंग का शोख लिबास ज़ेब तन कर रखा है, जबकि बालों में जूड़ा बनाकर गेंदे के फूलों का गजरा भी लगाया हुआ है। गाना ने फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी तस्दीक शुदा अकाउंट के जरिए हाथों पर मेहंदी लगवाते हुए तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में देखा जा सकता है अदाकारा ने नारंगी रंग का शोख लिबास ज़ेब-तन कर रखा है, जबकि बालों में जूड़ा बनाकर गेंदे के फूलों का गजरा भी लगाया हुआ है। अदाकारा गाना अली ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह नई शुरुआत। अदाकारा ने ये तस्वीर गुज़िश्ता शब इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिस पर मद्दाहों ने इन्हें ढेर सारी दुआएं दी। दूसरी जानिब ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि गाना अली की शादी किससे हो रही है। वाज़ेह रहे, अदाकारा गाना अली अब तक कई ड्रामों में नजर आ चुकी हैं। अदाकारा ने फिल्मों में भी अपने जलवे बिखेरे, जिनमें मान जाओ ना, रंगरेजा,
काफ कंगना शामिल हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक की इसराइल मुखालिफ ट्वीट डिलीट कर दी। वीना मलिक की इस पोस्ट को ट्विटर ने डिलीट तो कर दिया, ताहम जिस कॉल का वीना मलिक ने हवाला दिया वो एक फर्जी कॉल था। इसराइल की जानिब से फलस्तीन पर हमले के बाद से अदाकारा वीना मलिक ट्विटर पर काफी फाल हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक की फलस्तीन पर इसराइली हमलों के बाद यहूदियों के खिलाफ की गई ट्वीट को डिलीट कर दिया। वीना मलिक ने चंद रोज कबल एडोल्फ हिटलर की एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा था कि मैं दुनिया में तमाम यहूदियों को मार सकता था, ताहम कुछ को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा कि दुनिया देख सके कि मैंने उन्हें क्यों मारा। वीना मलिक की इस पोस्ट को ट्विटर ने डिलीट तो कर दिया, ताहम जिस कॉल का वीना मलिक ने हवाला दिया वो एक फर्जी कॉल था। इसराइल की जानिब से फलस्तीन पर हमले के बाद से अदाकारा वीना मलिक ट्विटर पर काफी फाल है और मुसलसल फलस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम से मुतालिक पोस्ट कर रही हैं। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। शाहीनों का नया इम्तिहान। PCB ने जुलाई में पाकिस्तान टीम के दौरे वेस्ट इंडीज के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने के बाद 21 जुलाई को वेस्ट इंडीज पहुंचेगी। दोनों टीमों के दरमियान 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस 27 और 28 जुलाई को बारबाडोस में शेड्यूल हैं, जबकि बाकी 3 T20 21 जुलाई, 1 और 3 अगस्त को गयाना में खेले जाएंगे। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट 12 से 16 अगस्त और दूसरा 20 से 24 अगस्त तक खेला जाएगा। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। हैदराबाद, कराची, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद में 28 से 20 मई के दौरान गर्दालुद हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई की गई है। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में गर्मी की लहर आ सकती है। दर्जा हरारत 42 से 43 दर्जे तक जा सकता है। हैदराबाद में 17 मई से मुतवक्किल तूफानी बारिशों के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बहरा अरब के जुनूब मशरक में बनने वाला समुद्री तूफान टॉक आई कराची के जुनूब और जुनूब मशरक से 1460 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसमी सिस्टम के बाईस 17 से 20 मई के दौरान ठट्टा, बदीन, थर, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़ में बारिश का इम्कान है। हवाओं की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर तक रहेगी। हैदराबाद, कराची, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद में 18 से 20 मई के दौरान गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई की गई है। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में गर्मी की लहर आ सकती है। दर्जा हरारत 42 से 43 दर्जे तक जा सकता है। जुनूब मशरिक बहरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसके बाईस पाकिस्तान और भारत की साहिली पट्टी पर तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा है, जो बढ़कर 100 किलोमीटर तक भी जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान कराची के जुनूब और जुनूब मशरिक से 1460 किलोमीटर के फासले पर है और समुद्री तूफान का रुख शुमाल और शुमाल मगरिब यानी भारतीय गुजरात की जानिब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 मई तक समुद्री तूफान भारतीय गुजरात तक पहुंच जाएगा। टॉक आई नामी समुद्री तूफान के नतीजे में भारतीय रियासत गुजरात के साहिली इलाकों और पाकिस्तानी समंदर के करीब मशरिक की जानिब साहिली इलाकों को खतरा हो सकता है। अगर ये समुद्री तूफान शिद्दत पकड़ गया तो ये पिछली 2 दिहाइयों के दौरान पाक भारत साहिली पट्टी से टकराने वाला ताकतवर तरीन तूफान होगा। ताहम अभी तक के अंदाजों के मुताबिक समुद्री तूफान आबादी वाले साहिली इलाकों से दूर रहेगा। महाराष्ट्र का साहिली शहर मुंबई इससे मुतासिर हो सकता है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।